you are learning at your own educational channel, OMS Learning Arena. Today we are going to discuss the question of exercise 2.7 of chapter 2, fractions and decimal. And these questions are based on just division of decimal. So here are also three kind of questions, student. First, when we are dividing a decimal number with whole number. Second type is when we are dividing a decimal number with 10, 100 or 1000. And third type is when we are dividing a decimal number with decimal number. So we are initiating with the first type of the question, when we are dividing decimal number with whole number. So this is given 0.4 divide 2. So how will you do this question, student? You have learnt about the solution of division of fractions. So here we will use the same concept. The first part 0.4, we will write same 0.4, and then the division sign is here, and here is given only 2, so we will make it fraction. For make it fraction we will put a 1 in the denominator ताकि आपका फ्रैक्शन बन जाए. फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड में 1 डाल सकते हैं. नाउ इट इज गिवन 0.4 here, and this division sign will convert into multiplication similar according to the fraction. जो आपने फ्रैक्शन में किया था उसी टाइप से आपका डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में. एंड 2/1 will be 1/2. now reduce this given number. We will cancel out 0.4 by 2. So in the table of 2, 0 will come at 0, then decimal. In the table of 4, in the table of 2, 4 will come at 2. So 0.2 is your answer. Okay, student. Similarly, you will do the rest part. Here is given 2.84. Here is not given a fraction, so you will put a 1 here to make it fraction. So 2.84 is given, and convert this division sign into multiplication, and it will be 1/4. आप इस फ्रैक्शन को एक्सचेंज कर दीजिए, it will be 1/4 when you are converting this division sign into multiplication. Now reduce this given number. You will cancel out by 4 2.84. Now in the table of 4, 2 will not come, and less than 2 is 0 will come. 4 की टेबल में स्टूडेंट 2 नहीं आता है, तो लेस देन 2 0 will come, and we will put the decimal after that because 1 digit के बाद हमारे पास यहाँ पर decimal है. Now आपने देखा होगा 4 की टेबल में लेस देन 2 0 आता 0 पे, तो 2 हमारा रिमाइंडर रह जाएगा यहाँ पे. एंड 2 के बाद जो हम उसके साथ 8 लेंगे, दैट इज 28. 4 की टेबल में जो 28 होता है वो 7 पे आएगा, एंड जो हमारा 4 है दैट विल कम एट 1. तो ये हमारा 0.71 जो है बन जाएगा. दैट इज अवर आंसर 0.71. सी द नेक्स्ट पार्ट. विल डू द सेम टाइप इज हेयर. 651.2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे. हेयर इज नॉट गिवन नथिंग, सो विल पुट 1 एज अ डिनोमिनेटर. अब ये फ्रैक्शन आपका रिवर्स हो जाएगा 1/4. देखिए स्टूडेंट, आप यहाँ पे अगर कैंसिल आउट करने में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट थिंग नहीं है. वी आर डूइंग द सेम डिवीजन जैसे हम करते हैं ना. 651.2 वो ही हम कैंसिल आउट यहाँ कर रहे हैं बाय 4. ओके, इन द टेबल ऑफ 4 लेस देन 6 इज कमिंग 4 एट 1. 2 will be remainder, then we will take 5. Okay, as a carry we will take 5 from the given dividend part. So here 24 is given. Now in the table of 4, add the 6, 24 will come, and 1 is remainder will left. Now we will take one more here. 4 2 is 8. Now 3 will left, and we will take, now here is decimal also, we'll take 2 from the upper side. now 4 8 is 32. ओके स्टूडेंट, तो आप कुछ डिफरेंट नहीं है यहाँ पे. जो हम डिवाइड कर रहे हैं ना, दैट इज सेम हियर. वो डिवीजन ही है यहाँ पे नंबर्स की, बट आपको समझना है कि हाउ वी विल परफॉर्म दैट. ओके, सो यू कैन कैंसिल आउट विद 4 at 1. जिस नंबर पे कैंसिल आउट होगा दैट नंबर यू विल राइट हियर.
लेस देन 6 इज 4 एट 1. नाउ 2 विल लेफ्ट हेयर. अगर 6 से छोटा 4 आपका आया है तो आपका 2 लेफ्ट हो जाएगा. देन 25 इज हेयर एंड लेस देन 25 इज 24 एट 6. ओके, देन जो हमारा 25 से लेस होगा वो 24 होगा 6 पे. 1 विल लेफ्ट, उस 1 के साथ ये 1 होगा तो 11 बन जाएगा. और लेस देन 11 4 2 इज 8 होगा और 3 हमारा वहां से भी लेफ्ट हो जाएगा. एंड 32 4 की टेबल में जो 8 पे होगा वो 32 आ जाएगा. एंड 1 डेसिमल इज हियर. तो सेम प्रोसीजर इज देयर स्टूडेंट, कुछ और नहीं है ज़्यादा. एंड वी विल डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 162.8. Now we will do one more question here. Here is also nothing is given in the denominator, so we will put 1 here. Now this is given 0.80 and we will convert this division into multiplication and it will be 1 upon 5. Now we can cancel out this 0.80 by 5. Okay. In the table of 5, 0 will not come. Less than 0 is 0. In the table of 5, 0 will come at 0, then decimal, and लेस देन 8 इज 5 एट 1. जो 8 से छोटा होगा 5 की टेबल में वो खुद 5 ही होगा इट सेल्फ, दैट इज एट 1. तो यहाँ पे आपके पास 8 से लेस जो 5 आया तो 3 लेफ्ट होगा 30. एंड इन द टेबल ऑफ 5 30 विल कम एट 6. ओके, सो 0.16 इज योर आंसर व्हेन वी आर डिवाइडिंग 0.80 विद 5. नाउ सी द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन. फॉर डिवीजन वी डोंट हैव अ सिंगल मेथड स्टूडेंट. यहाँ भी हमारे पास 2-3 टाइप होती है. आई एम गोइंग टू टेल यू. 4.8 डिवाइड विद 10. देखिए स्टूडेंट, वन मेथड इज सिंपल जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है कि जो 4.8 है दिस विल बी सिमिलर एंड दिस विल बी द डिवीजन विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड इट विल बी 1/10 जो भी आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था. ओके, और यहाँ पे आपकी सिंपल डिवीजन ही परफॉर्म होंगी जैसे आपके रेस्ट क्वेश्चंस में हुई थी. लाइक वी विल डिवाइड 4.8 विद 10. ओके, इन द टेबल ऑफ 10 लेस देन 4 इज 0, सो वी विल पुट 0 क्योंकि 4 जो होता है 10 की टेबल में आता नहीं है, 0 आता है उससे लेस. सो विल टेक 4 इज हेयर. And after that, if we are taking 8 from here also, so we will put the decimal also because we are including the decimal number here now. Now in the table of 10, less than 48 is 40 at 4. जो आपका 48 होगा वो 40 हो जाएगा 48 से less. And here 8 will be left. Now student you know जो decimal के बाद होता है उसके बाद आप numbers entry कर सकते हो zeros. Okay, zeros आप entry कर सकते हो for division. So 1 0 I am entering here. Now in the table of 10 at 8 80 will come and the division will be done. आपकी जो division है वो done हो जाएगी and your answer is 0.48. तो यहाँ से आप क्या conclusion देख रहे हैं स्टूडेंट? अगर आपके division में 1 0 है तो आपका जो डेसिमल है वो 1 डिजिट बैक साइड शिफ्ट हो जाएगा. मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन में एक केस बताया था. जब भी आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो 10 में आपके पास 1 0 होती है तो आपका डेसिमल जो तो 1 डिजिट फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है. ओके, 48.1 बन जाता है. ओके, सिमिलरली यही सेम चीज़ आप डेसिमल को डिवीजन में भी अप्लाई करेंगे कि अगर आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, इन द 10 देयर इज 1 0 तो आपकी जो डेसिमल है वो 1 डिजिट बैक साइड शिफ्ट हो जाएगी. ओके स्टूडेंट, जो आपकी मल्टीप्लाई में है वो आपकी डिवीजन जो आपके मल्टीप्लाई में जो डेसिमल है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. जो आपके डिवीजन में जो जीरोज होती है उसके अकॉर्डिंग डेसिमल है जो बैकवर्ड साइड शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू द गिवन जीरोज. जितने भी जीरोज होते हैं उतने ही डिजिट आपका शिफ्ट हो जाएगा. ओके, एंड वन मोर मेथड इज हेयर. आप यहाँ पे 4.8 डिवाइड 10 जो गिवन है आप यहाँ पे 4.8 का जो जीरो है वो चेंज करके 48/10 भी लिख सकते हैं. आप डेसिमल जब भी हम रिमूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट होती है हम डिवाइड में उतने ही जीरोस, इट मीन्स 10 100 और 1000 वी कैन पुट देयर. अब आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और इट विल बी 10. ओके स्टूडेंट, नाउ अब आप क्या देख रहे हो कि आपको 48 डिवाइड में 100 मिल रहा है. 48 डिवाइड में 100 मिल रहा है. नाउ स्टूडेंट यू नो जब भी हमारे पास डिवाइड में ऐसा कुछ नंबर होता है 10 100 और 1000
तो हम उस नंबर को रिमूव करके, उन जीरोस को रिमूव करके उतनी डिजिट के बाद डेसिमल पुट करते हैं, तो आपका ये जो होगा डेसिमल 0.48 बन जाएगा। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन। हमारे पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है, आप को डिवाइड करके या दिखाने की कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी हम एक डेसिमल नंबर को 10, 100 या 1000 से डिवाइड करते हैं तो उसमें जितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, डेसिमल आपका उतने ही डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपके पास 10 है, 1 0 है, तो आपका जो 4.8 में जो यहाँ डेसिमल था वो 1 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। ओके, एंड आंसर इज 0.48। सिमिलर यू विल डू हेयर, जो 0.7 और 10 से जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो आपका जो डेसिमल है वो यहाँ था, बट इन द 10 देर इज 1 0, तो आपका डेसिमल 1 डिजिट बैक साइड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आप फ्रंट में एक और 0 अपनी तरफ से पुट कर सकते हैं। सो 0.07 इज द आंसर। सिमिलरली यू विल डू इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, जो आपका डेसिमल है वो यहाँ है और 10 में आपके पास 1 0 है, तो आपका डेसिमल 1 डिजिट बैक साइड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एंड इट विल बी 27.223, बिकॉज आपका डेसिमल पहले यहाँ था और 1 डिजिट शिफ्ट होकर वो यहाँ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, और सेम ही प्रोसीजर आप 100 से डिवाइड करने में भी करेंगे। द डेसिमल इज हियर 2.7 में आपका डेसिमल जो है वो 2 और 7 के मिड में है, बट यू आर डिवाइडिंग बाय 100 एंड द 100 देयर आर 2 zeros। 100 में आपके पास 2 zeros होती है, तो आपका डेसिमल 2 डिजिट बैक साइड शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आपका डेसिमल यहाँ है और आप यहाँ लेकर आओगे तो ये तो हमारे पास ओनली 1 डिजिट गिवन है, तो एक डिजिट आप अपनी तरफ से बना लोगे, दैट इज 0। ओके, क्योंकि किसी भी नंबर के एंड में और किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में डेसिमल्स में आप कितने भी जीरोज ऐड कर सकते हो, डेसिमल के बाद नंबर के एंड में एंड डेसिमल से पहले नंबर के स्टार्टिंग में कितने भी जीरोज आप एंट्री कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल था वो हेयर था एंड वी आर शिफ्टिंग इट आफ्टर 2 डिजिट, तो 1 डिजिट तो ये हो जाएगी एंड सेकंड डिजिट ये 0 हो जाएगी, तो यहाँ ये शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आगे आफ्टर 2 डिजिट। सो 0.027 इज द गिवन आंसर। सिमिलरली वी विल डू हेयर 0.78 को आप 100 से कर रहे हो तो 78 यहाँ पे आपका डेसिमल था, बट वी हैव टू शिफ्ट दिस डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, तो एक डिजिट मैंने ये 0 बना ली, सेकंड डिजिट मैंने ये 0 बना ली, तो आप जीरोज डाल के डिजिट को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ योर डेसिमल वाज हियर, तो वो 1 2 डिजिट के बाद यहाँ आ जाएगा, इन द स्टार्टिंग यू कैन ऑल्सो पुट अ 0। Similarly, we will do this question also. The decimal is here and after 2 digit 1, 2, here the decimal will come 2.36, 0.236 and you can put 1 0 here. तो ऐसे आप divide कर सकते हो by 10, 100 और 1000. Now the question number 4th is division by 1000. तो इसमें भी आप same method use करोगे student. 7.9 and the decimal is here, but we have to shift the decimal after 3 digit due to 3 zeros here. So 1 is 7, then 0, then 0. 1, 2, 3 digit after you can put a decimal here and this is your answer. And here is also you will put the decimal after 3 digit 1, 2, 3. So here the decimal will come 1289 will be your answer and 0.1289 is your final answer. Now we will do the question of 5th type. Now we will do the question of 3rd type. We are dividing the decimal number with decimal number, or sometime there can be a whole number with decimal also student. Both decimal number can be there and whole number with decimal number can also be there. Okay. So we are going to start this question. Student you know one thing, आपको पता है जब भी हम divide को remove करते हैं, you know ना, जब भी हम स्टूडेंट यू नो जब भी हम डेसिमल को रिमूव करते हैं, लाइक वी हैव गिवन 3.5, तो अगर आप इसका डेसिमल रिमूव कर रहे हैं तो आप इसके डिवाइड में 1 के साथ उतने ही जीरोस पुट करोगे जितने आपको डेसिमल के बाद डिजिट की हुई है। लाइक 3.5 को आप 35/10 लिख सकते हो, 1.98 है तो आप इसको 198/1000 राइट कर सकते हो। यस यू नो दिस थिंग, सॉरी 100 you can write in this way because after decimal there is 2 digit, तो आप डिवाइड में 100 राइट कर सकते हो। for 2 digit you can put 2 zeros with 1. Similarly we will do in this question 3.5 is given here, तो आप उसको 35/10 भी लिख सकते हैं। now you can convert this division into multiplication और ये आपका 10/10
35 बन जाएगा। ओके, नाउ वी कैन रिड्यूस दिस फ्रैक्शन। 7 की टेबल में आप 35 को रिड्यूस कीजिए एट 5 पर। ओके, नाउ इस 5 से आप इस 10 को रिमूव कीजिए एट 2 और जो आपको फाइनल आंसर हो जाएगा दैट इज 2। ओके, फाइनल आंसर जो होगा आपका वो 2 हो जाएगा स्टूडेंट। सिमिलरली आप ये पार्ट भी कर सकते हैं, आप इस 0.2 का जो है उसको आप डिवाइड में 10 राइट कर सकते हैं। यू कैन राइट 36 डिवाइड 2/10। ओके, आप इसके डिवाइड में 10 राइट कर सकते हो बिकॉज ऑफ 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल। नाउ यू कैन राइट दिस 36 मल्टीप्लाई 10/2। ओके स्टूडेंट, नाउ यू कैन रिड्यूस दिस 36 by 2 at 18। आपको पता है 36 जो हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 18 मिलता है। 18 2 is 36। नाउ 18 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 180। ओके, सो दिस इज द डिवीजन अगेन। हेयर इज बोथ द नंबर आर गिवन इन द डेसिमल। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्टली वी विल रिमूव द डेसिमल ऑफ बोथ द नंबर। हम फर्स्टली दोनों नंबर्स के डेसिमल को रिमूव करेंगे। दिस इज 5/10 एंड दिस इज 25/100, क्योंकि इसमें आपके पास डिवाइड में 10 आएगा बिकॉज ऑफ 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल, और यहाँ पे आपके पास 25 आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट होने की वजह से 100 आ जाएगा। नाउ यू कैन चेंज दिस नंबर 5/10, यू कैन कन्वर्ट दिस डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो आपका ये नंबर जो होगा वो चेंज हो जाएगा, 25/100 की बजाय 100/25 आ जाएगा। नाउ वी कैन रिड्यूस 1 0 with 1 0 एंड 5 with 25 at 5। तो आपके पास जो है वो बचा है 10/5। ओके, तो ये जो आपके पास 10/5 जो बचा है स्टूडेंट, इसको आप अगेन कैंसिल आउट कर सकते हो एट 2। तो फाइनल आंसर जो होगा आपका वो 2 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन ऑल्सो। इसको और देख लीजिए आप। यू कैन रिमूव दिस डेसिमल, तो आप इसको 273/100 लिख सकते हैं। दिस इज नॉट डेसिमल स्टूडेंट। और इस डिवीजन के बाद आप इसको 13/10 लिख सकते हैं। ओके, नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस नंबर 273 with 100 मल्टीप्लाई इट विल बी 10/30। ओके, ये आपका 10/13 बन जाएगा। नाउ वी कैन रिड्यूस 1 0 with 1 0 एंड विद द 13 at 235 at 51। हाउ 51? इन टेबल ऑफ 13 जो आपका 27 से लेस होगा वो 26 होगा, वो होगा 2 पे। सॉरी हेयर विल कम 2 बिकॉज 13 2 is 26। तो 21 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड आफ्टर 21 दिस इज गिवन 10 ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको 21/10 जो है आपका बचा है, ये 21 इन द न्यूमरेटर एंड हेयर इज 10 इज लेफ्ट। नाउ वी विल डू द सेम थिंग कि हम रिमूव करेंगे डिनोमिनेटर से 10 को, और जितने जीरोज होते हैं उतने डिजिट के बाद फ्रॉम द बैक साइड हम डेसिमल पुट कर देंगे। सो 2.1 जो आपका वो आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। Last question of this exercise is a vehicle covers a distance of 43.2 km in 2.4 liter of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? So student, जो distance covered है in 2.4 liter of petrol that is given 43.2. So we can write distance covered in 1 liter of 2.4 liter of petrol. Distance covered in 2.4 liter of petrol is 43.2 kilometer and distance covered in 1 liter of petrol जब भी हम निकालते हैं we will use that concept of division here. Why division student? Because you know जब भी हमें more than one कोई भी चीज़ की आपको वैल्यू गिवन हो, more than one thing की कोई भी वैल्यू गिवन हो और उससे हमें one thing की कभी भी कैलकुलेट करनी हो, we will always use the concept of division. तो 2.4 लीटर पेट्रोल का जो डिस्टेंस कवर्ड है यूज्ड का वो आपको 43.2 किलोमीटर गिवन है एंड 1 लीटर के लिए क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हम हमेशा यहाँ पे डिवाइड करेंगे। नाउ वी विल यूज द सेम मेथड हियर। वी हैव टू डिवाइड 43.2, तो आप इसके डिवाइड में 10 इंसर्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल के बाद 1 डिजिट होने की वजह से आप यहाँ पे 10 इंसर्ट कर सकते हैं एंड हियर इज ऑल्सो यू कैन राइट 10 इन द डिनोमिनेटर। ओके, नाउ ये जो आपके पास 432 डिवाइड में 10 है और ये जो है आपका 10 डिवाइड में 24 बन जाएगा। ओके स्टूडेंट,
नाउ वी कैन कैंसिल आउट 10 with 10 और हम 24 से इसको डिवाइड करके कैंसिल आउट करेंगे. हेयर इज वन मोर थिंग स्टूडेंट, आप इसको डायरेक्टली अगर कैंसिल आउट नहीं करना चाहते तो यू कैन कट इन द एनी टेबल. मैं इसको 4 के टेबल में कट करती हूँ. 4 6 is 24, 4 1 is 4, 3 जो आएगा नहीं, 3 से छोटा 0 होगा एट 0 एंड 4 8 is 32. ये मैंने 4 से कट किया, ये भी 4 से कट किया. नाउ वी विल कैंसिल आउट इट विथ 6. अब हम इसको 6 से कट कर देंगे. इन द टेबल ऑफ 6 लेस देन 10 is 6 at 1. जो 10 से लेस होगा वो 1 होगा, 6 होगा एट 1 पे. उसके बाद आपके पास 4 लेफ्ट होगा, 4 जो वो रिमाइंडर बचेगा. 48 वो आएगा आपके पास 8 पे. ओके, 6 8 is 48. तो आपके पास जो डिस्टेंस कवर्ड होगा 1 लीटर पेट्रोल में वो होगा 18 किलोमीटर. ओके, 18 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया जाएगा इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑफ डेसिमल बेस्ड ऑन डिवीजन. We'll come soon with the next video. Till then, thank you. Have a nice day.